ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु पा। शुकराना 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 मेरे गुरु जी, बारंबार शुकराना गुरु जी। रोम रोम ਸਾਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮੇ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी। शुकराना 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 मेरे गुरु पा। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੋ ਕਾੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢਣਾ ਵੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲਗਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਧਾਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਫਿਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾੜਾਂ ਬਲੌਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਨਾ ਸੈੱਟ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਸੰਕਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਕੋਈ ਆਇਆ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਸੰਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰਸ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਰੂਹਾਨੀ ਆਂਟੀ ਦੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨਿਕਾ ਆਂਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਐਕਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘਬਰਾਵਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤੀ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਧਿਆਨ ਲਾਈਓ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 3:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਅੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਈਓ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਕਦੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੜੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਿਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਗਿਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਮੰਦਿਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮੀ ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚੱਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਬੱਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਟਾਲਿਆ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग रूहानी आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और रूहानी आंटी, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरे फादर इन लॉ का सत्संग है। और संगत जी, ये उस टाइम की बात है जब मैं इंडिया में थी। और संगत जी, मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा स्टमक अपसेट था। और मैं बैठी थी और अचानक से दिन का टाइम था और मुझे नींद आ गई। जब मुझे नींद आई तो गुरु महाराज ने दिखाया कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो हॉस्पिटल में हैं। और बहुत सारी उनको वायर्स, बहुत सारी स्क्रीन्स, एंड देन ही वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। मैं उठी तो बहुत घबराहट में उठी एंड मैं जाके उनके पैरों के पास बैठ गई और पैर दबाने लगी। तो उन्होंने कहा क्या हो गया? तो मैंने उनको बोला कि पता नहीं, ऐसा सपना आया मेरे को और मैं बहुत घबराहट हो रही है। और फिर उसके बाद गुरु महाराज का मैसेज भी आया कि मैंने तेरे बहुत सारे कष्ट मैं तेरे ड्रीम्स में ही कटवा देता हूँ। और संगत जी, अगले दिन मेरे ब्रदर की वेडिंग थी छतरपुर में ही। और हम सब ने अगले दिन मॉर्निंग में ही छतरपुर जाना था। तो संगत जी, हम जब गए उसके बाद हम लोग डायरेक्टली बड़े मंदिर गए। मंडे था वो दिन। और संगत जी, सुबह जब हम वहाँ पे गए मंडे के दिन में, तो वहाँ बैठ के लंगर नहीं होता, तो हमें वहाँ पे जल प्रसाद की बॉटल्स मिली, चाय प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। हम सब ने अपना जो मिला सब कुछ खा लिया। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने अपना ब्रेड पकोड़ा नहीं खाया। बाकी उन्होंने जल प्रसाद भी पिया, चाय प्रसाद भी लिया और कड़ा प्रसाद भी खाया। मैंने उनको बहुत समझाया कि पापा, ये आपकी मेडिसिन है, इसको प्लीज़ पूरा खाओ। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी समझाया, लेकिन वो अभी गुरु महाराज ने उनको अपने से इतना कनेक्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया ना, प्रसाद तो ऐसे ही लेते हैं। अब हम लोग तो ऐसे ही पले बड़े हैं कि प्रसाद को थोड़ा सा ही लेते हैं। लेकिन अब गुरु महाराज ने ये बताया है कि ये प्रसाद तुम्हारी मेडिसिन है और उसको पूरा खाना है। अब हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। तो अब वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद आधा मैंने खा लिया, आधा मेरे हस्बैंड अंकल ने खा लिया। अब संगत जी, शाम को वेडिंग थी और उसी दौरान उनको फ़ीवर हुआ और उन्होंने बोला कि मेरे को फ़ीवर हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो हम लोग उनको होटल रूम में लेके गए, मेडिसिन दिया और वो सो गए। और अगले दिन उनका जो फ़ीवर था वो गायब। उनको कोई ऐसी बॉडी में पेन्स नहीं थी जो रात को थी। जो उनको रात को ऐसा फ़ील हो रहा था कि ही इज़ फीलिंग वेरी टायर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज़ ऑल गुड। और संगत जी, गुरु महाराज ने पहले तो ड्रीम में उनका कष्ट कटवाया, फिर उसके बाद बड़े मंदिर बुला के उनको ब्लेसिंग्स दी। अगर वो मेरे को ऐसा लगता है, अगर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो वो फ़ीवर भी नहीं आना था। लेकिन गुरु महाराज ने उनका बहुत 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 बड़ा कष्ट कटवाया। संगत जी, देखो, कई बार ऐसा होता है कि गुरु महाराज हमें अपने आप से जोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें ब्लेसिंग्स देनी होती हैं उनको, तो बुलाते हैं और देते हैं। और संगत जी, उनके ब्लेसिंग्स देने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते। बट इतना ज़रूर है कि वो परमात्मा हमारा पल पल ध्यान रख रहे हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। और मैं अगर देखूं तो मेरी दूर दूर तक फैमिली में सब कोई गुरु संगत है। और कहाँ कहाँ उन्होंने ब्लेसिंग्स नहीं दी, कहाँ कहाँ उन्होंने हमें नहीं संभाला। चाहे वो मेरे पापा की साइड की फ़ैमिली हो, मम्मा के साइड की फ़ैमिली हो, दूर दूर तक गुरु महाराज की ही संगत हैं। और शुक्राना है गुरु महाराज का कि गुरु महाराज ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी संगत बन सकें। संगत जी, मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि इतनी काबिलियत नहीं थी कि उनकी संगत बन सकें, बिकॉज़ गुरु महाराज खुद परमात्मा, अब उनकी कृपा है, उसके लिए मैं शुक्राना हर पल करती हूँ। और मैं यही अरदास करती हूँ कि उनके गुणगान गाती रहूँ, उनके शुक्राना करती रहूँ। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, खूब सारी ब्लेसिंग्स सबको देना,
जिसके पास जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करना और उनको खुशहाल ज़िंदगी देना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग आप सबके सामने लेके आ रही हूँ। मैंने बहुत गैप के बाद संगत जी शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे टाइम मिला है, और वो टाइम भी क्यों नहीं मिल पाया मेरे गुरु जी महाराज को बहुत अच्छे से पता है कि आज जैसे मुझे वो टाइम स्लॉट मिला है, तो मैं आज सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग रखना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ की जो जर्नी है वो बहुत 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 अमेजिंग होती है संगत जी, बहुत अमेजिंग होती है। आपको हर एक मोमेंट पे आपको लगता है कि आपको गाइड करने के लिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी लाइट आपके साथ चल रही है कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं फील होती है। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, आप इजीली जो है वो सिर्फ अपने मन को आपको कंट्रोल करना है, और आपको अपने मन को जो है वो भक्ति की राह पे लेके जाना है अपने गुरु के प्रति, और ऑटोमेटिकली आपको हर एक चीज़ का आंसर जो है वो आपके सामने आ जाता है। आज का एक शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शिव पुराण में जो लास्ट के कुछ जो अध्याय हैं वो पढ़ रही थी। उसमें इतनी ब्यूटीफुल लाइन आती है संगत जी, शिव ही गुरु हैं और गुरु ही शिव हैं। सो बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज मुझे शिव पुराण पढ़ने की दात बख्शने के लिए। ऑल्दो मुझे बहुत टाइम लगा है इसको कंप्लीट करने में, इट्स अराउंड 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। और मतलब कि मुझे लेकिन यह है कि बहुत 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 सुकून की जो फीलिंग है ना वो मिलती है जब जैसे ही मैं शिव पुराण का पाठ पढ़ती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए, इस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी तो मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे साथ जुड़ना ही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। एंड दैट्स ट्रू संगत जी, दैट्स 101% ट्रू। क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं जोड़ा, मेरे को तो खुद मेरे महाशिव, मेरे भोले भंडारी ने खुद मेरा हाथ जो है मेरे गुरु के हाथ में दिया है कि किस तरीके से मैं, मतलब इट्स टोटली अमेजिंग, इट्स टोटली अमेजिंग। क्योंकि पता है संगत जी, मेरे से जो कोई मिलता है ना, एवरीबडी इज सो मच शॉक्ड, एंड कि मतलब रियली कि मतलब तुम भी मानते हो गुरु जी को, कि मतलब सबको लगता है कि मैं तो नहीं इन सब चीज़ों में बिलीव करने वालों में से हूँ, और सबको ये रहता है कि हमें भी बताओ। और समहाउ पता नहीं अभी तक शायद मेरे गुरुजी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है कि वो जो मोमेंट है वो मैं शेयर करूँ, अनटिल एंड अनलेस जब मेरे गुरु की तरफ से वो आज्ञा होगी, और जब मैं उस पर्टिकुलर पर्सन को वो सत्संग शेयर कर लूँगी, और शायद उसके बाद मैं सब लोगों के साथ ये शेयर कर सकती हूँ वो मोमेंट जब मेरे को गुरुजी ने अपने साथ कनेक्ट किया था। तो उन सब चीज़ों के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। डॉटर की सर्जरी के बाद मैंने एक सत्संग शेयर किया था, और उसके बाद मुझे आई थिंक आफ्टर अ गैप ऑफ 1 मंथ मुझे आज टाइम मिला है। टाइम तो हर दिन रात हर एक क्षण जो है वो गुरु के नाम है। इतनी रहमतें हैं मेरे गुरुजी महाराज की। लेकिन आपको सत्संग शेयर करने के लिए एक बहुत अलग से आराम से बैठने की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसके लिए बेअंत शुक्राना कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे वो प्लेस प्रोवाइड करी है कि मैं वहाँ बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, हर एक चीज़ जो है ना वो अपनी पेस पे लाने के लिए सिर्फ गुरुजी हमारे महाराज जो है वो हमारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन कर सकते हैं और उनको सही पाथ पे डाल सकते हैं। मेरा अपना ऑफिशियल जर्नी भी बहुत 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 जिसे कहते हैं ना कि मतलब बड़ा उथल पुथल हो रखा हुआ था विद इन 2 years के स्पैन में।
और मुझे वही चीज़ जो है वो मैं हर एक फील्ड में कर रही थी, नॉट ओनली इन माय ऑफिस बट मेरी फैमिली में, मेरी हर एक रिलेशन में मुझे वही चीज़ जो है, सब चीज़ें जो हैं वो उल्टी पुल्टी नज़र आ रही थी। मतलब किसी भी चीज़ में ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं फील हो रही थी, हर एक चीज़ जो है ना वो मुझे डिग्रेडेड फॉर्म में मिल रही थी। और संगत जी, कैन यू इमेजिन, डे बाय डे मेरे गुरुजी महाराज की रहमतें बरस रही हैं और वो हर एक चीज़ को वैसे सेटल डाउन कर रहे हैं। मैं आपके ऑफिस की अपना एक शेयर करती हूँ। मैं जिस जगह पे पहले पोस्टेड थी वहाँ पे मेरे पास प्रॉपर जो है वो अपना रूम, अपना कंप्यूटर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि मतलब एसी है तो एसी है, आपके पास विंटर्स हैं तो आपके पास हीटिंग अरेंजमेंट्स हैं, सब कुछ वैसे प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओन रूम। और जैसे मेरा दूसरी जगह पे पोस्टिंग हुआ है तो मुझे मतलब वो सब चीज़ें जो है, क्योंकि मेरे से ऊपर शायद कोई सीनियर था तो वो मैं वैसे वहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो पा रही थी। मतलब इट टुक अराउंड 2 years टू सेटल डाउन। किस तरीके से गुरुजी महाराज ने, और पता है संगत जी, द मोमेंट आपको मतलब कि एक बार कुछ मैसेजेस आपके लिए इतने 101% ट्रू होते हैं कि मतलब किसी दिन मतलब कि एक इतना ब्यूटीफुल मैसेज आ जाता है कि आज तुम्हारी ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और पता है संगत जी, उसी दिन जैसे मैं ऑफिस गई हूँ, मेरा अपना रूम, क्योंकि मेरे से जो सीनियर थे ही गॉट ट्रांसफर्ड, तो मेरा वैसे के वैसे ही रूम अलॉन्ग विद मतलब जिस तरीके से आपका पहले जैसा मेरा सेटअप था पूरा का पूरा वैसे ही सेटअप, हर एक चीज़ जो है वेल अरेंज्ड, वेल सेटल्ड। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ मेरे गुरुजी महाराज की रहमतें हैं। अब संगत जी, एक और चीज़ आपको बताती हूँ। मेरे को छुट्टी लेनी थी और क्योंकि मेरे बेटे के एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं तो मुझे और मेरा ऑफिस का ऐसा सिचुएशन था कि अभी मेरे पास उतना ज़्यादा वर्क पार नहीं था, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे छुट्टी मिलेगी। तो फिर भी मुझे लगा कि मुझे हायर ऑफिशियल से बात तो करनी है। आई वेंट और मैंने बताया कि मुझे ऐसे सब छुट्टी चाहिए। और पता है संगत जी, मेरे को सर ने कुछ नहीं बोला कि हाँ ठीक है देख लो, तुमने मैनेज करना है, जैसे तुम मैनेज करोगे। तो मैंने कहा नहीं सर हो जाएगा। और पता है संगत जी, मतलब मैंने 1% भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे और रिफ्यूज़ करेंगे। और इतना इजीली जो है वो सब चीज़ें मैनेज हो गई। और हमेशा से मतलब ये जो जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ तभी से ये चल रहा है। जब जब मुझे छुट्टी की ज़रूरत फील हुई है, जो जिसे हम चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं, वो इजीली जो है मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दिलवाई है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी बेहद शुक्राना। मेरी चीज़ें सेटल डाउन करने के लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों की हेल्थ ठीक करने के लिए, उन्हें उनकी स्टडीज़ में उनके प्रॉपर प्लेस पे लाने के लिए, जो जैसे पहले था 2 साल पहले था, वो शायद 2 साल का स्पैन जो है मैं अपनी लाइफ में ना याद भी नहीं करना चाहती। मतलब इस तरीके का टाइम निकला है। तो मेरे गुरुजी महाराज की रहमत है कि हर एक चीज़ जो है वो, चाहे मेरी फैमिली से लेके हो, चाहे मेरे बच्चों की हेल्थ से हो, चाहे उनकी स्टडीज़ को लेके हो, उनके कैरियर को लेके हो, हर एक चीज़ जो है वो सेटल डाउन करने के लिए मेरे गुरुजी महाराज बेअंत शुक्राना। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं। इसके लिए मैं अपने गुरुजी से हर एक संगत परिवार के लिए निवेदन करती हूँ कि अपनी रहमतें जो है ना वो बरसाएं गुरुजी महाराज। सर्वत का भला करो मेरे गुरुजी महाराज। हर एक बच्चे को हेल्थ बख्शो, हर एक संगत को हेल्थ बख्शो और उनकी खुशियाँ जो हैं उनको बख्शो, खुशियों को बख्शो। और गुरुजी महाराज कोई भी किसी के लिए कोई ग्रजेस ना ले इस लाइफ में। और जो भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले जो लोग हैं उनको भी सद्बुद्धि बख्शो कि किसी के ऊपर ईवल आई रखने से कुछ नहीं होगा। उनको सद्बुद्धि बख्शो गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि बख्शो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स पूरे संगत परिवार के लिए। और रूहानी आंटी, आपका भी दिल से धन्यवाद जो आप इतना ब्यूटीफुली चैनल में सबके सत्संग शेयर करते हो। एंड मतलब कि ना जानते हुए भी एक दूसरे को आप जो है वो एक बहुत ब्यूटीफुल सा एक जो गुरु परिवार हमारा बना हुआ है, इसके लिए भी सब लोगों का तहे दिल से शुक्राना है। और गुरुजी महाराज इसी तरीके से इस परिवार को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें
और इसी तरीके से अपने चरणों में लगाए रखें। हमेशा नीवा होके रहने की दात बख्शें। कभी अपने मन में अहंकार ना आए मेरे गुरुजी महाराज। मुझे इस तरीके की रहमतें देना कि मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई ईगो ना आए मन में कि ये मेरा है। अब वो मैं वाला जो है, जो आपने ख़त्म किया है गुरुजी, बस मुझे ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। मेरी फैमिली को ब्लेसिंग्स देना और सद्बुद्धि बख्शो गुरुजी महाराज, सद्बुद्धि बख्शो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।